Okay. So today we are going to mainly focus on how to fix the issues related to problematic SQL statement. Okay, that is the whole purpose we are going to discuss in next 45, 50 minutes or 1 hour. So what we already know, how to find problematic SQL statement, which all are the way you are going to get those problematic statement. All are aware, no issues in that, right? Yes, sir. Okay. Yes, So sir. just to give you the brief, like maybe users are complaining saying that this statement is having problem. Maybe you will be getting statement through different views, maybe long app, maybe your AWR report, maybe through AFH report, whatever top consumed resources, and you guessed that, okay, this statement might be the problematic by doing the comparison, doing the performance related, the time taken stuff. We will be getting, this is another way. Another way, maybe ADDM report is giving that, okay, this is the SQL statement, is the issues, and getting advice to do the or run the or check with tuning advisor. Okay, so these are the 3, 4, 5 way we will be getting the problematic statement. So the first thing, we need to find out the SQL ID for the problematic SQL statement. How to find out that? Okay, so any idea which way we can find out the SQL ID for the SQL statement? $SQL. Very good. Through $SQL, we will be getting that this is the problematic statement what we are having. Okay, so let's assume what I'm going to do right now. I'm creating one table. So as a whole, from scratch, I'm going to create one scenario. But creating the scenario is just for the testing purpose. So you will be able to realize what is happening behind the scene. So we will be getting the problem. Okay. The next 5-10 minutes, whatever we are going to discuss, that scenario you will be already getting by default. But though we are not having right now production system, so I'm trying to generate that particular challenge, and what exactly we will do to fix it, we will execute that part also. And in the meanwhile, if you have any problem, concern, understanding the situation, requesting you to ask me. Otherwise, it's waste of time. No. Okay, so I'm sharing my screen. And we are going to use, I'm just and on that, I'm connecting. So let's say I'm assuming one table is there, SHA, under ISM user. How to find out? Describe ISM dot SHA. ISM admin. DSU, I guess. C के जगह V. Yes, sir. Describe. Okay. DSC. Again, describe ISM admin dot SHA. So this table have 2 columns. And here, what I'm doing, I'm running a SQL statement. Select start from where ID equal to 10. And somehow we will get, this is the problematic statement. Okay. Somebody said that, okay, set line size. This is the statement what we gave. It is taking longer, much longer time than expected.
they were expecting 1 second, it is taking maybe 12 seconds or 20 seconds or 1 minute. So we assumed this. So how to find out this SQL ID? So there's a command called select SQL underscore text SQL. underscore text from $SQL. So better $, check that particular view. Yes, sir. And Yes. because it's very tough to remember. So there's a SQL text and SQL ID. So we have Yes, for this two thing only for now. So SQL ID and SQL text. Sir, Yes. what is ISM as admin.sql? I'm not expecting this particular question from. That's a user under which Oh, okay. that object is present. SHA table object is present. Okay. Got it. This is simple now. Sir, it's a quite different name now, so that's why I'm asking. Is that anything particular different thing on what? Okay, so if you don't know any names or pattern, you're not able to understand. Right. Only HR and Scott will be the username in the world, though you have. Mainly we are using that, sir. That's why. No, that's what I'm saying. Yeah. So you have used this tool. That means other than this tool is not going to. You will be getting totally confused with the name. It should not be. Okay, so select SQL ID this from $SQL where SQL text like within this give the statement. What statement? Whatever the problematic SQL statement. Okay, so this All is right. giving this. So select so S is What? no, sir. It's Same with the S. yeah, it's clear. Yeah. Okay now. Okay. So here I'm giving where this you will be getting. Let me column and format A. So here, which statement we have used? This one, right? Yes, sir. So what is the SQL ID? This is the SQL ID. Yes, Correct? yes, sir. So what I'm doing, I'm just keeping the SQL ID in. I'm just copying it and pasting in a notepad because this is needed. This is the problematic SQL statement. And ID for that is this. Make All sense? No confusion? No, Got sir. it, sir. Okay. Yes, sir. So I'm just doing and I'm making a note also for you guys so that I'm just taking this statement and this statement gave us the outcome. This is the scenario. So we got this SQL ID. Now, we have to tune this. Tune means first we need to find out where is the problem inside. So if any SQL statement is performing bad way, what are the reason you guys already aware with? एक जो SQL statement हम लोग रन करवाए हैं उसमें प्रॉब्लम क्या क्या हो सकता है? Which all are the options you knows? Sir, it might happen that that particular statement is like SQL statement is running for longer duration. नहीं, क्या कारण हो सकता है? ये तो longer duration is the problem. Yes. What is the reason for that problem? Sir, it might be because it may go to hard parsing since it is not present. Okay. So one is hard parsing. What else? Soft parsing. नहीं, soft parsing तो चलेगा. Hard parsing और क्या है बताओ? क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है SQL स्टेटमेंट को डिले होने के लिए? दूसरा है सिस्टम अगर हैंग हो जाए. क्या? सिस्टम अगर हैंग हो जाए. नहीं, सिस्टम हैंग हो जाए है वो उसका आउटकम है, बट रीजन क्या हो सकता है? रीजन हम लोग जान रहे हैं. ज़ॉम्बी प्रोसेसेस बढ़ जाए तो. और क्या है बताओ? देखो, Is there a possibility like many people are using the same command at that same time? Sir, maybe another SQL statement in queue. ठीक है. और अनदर SQL स्टेटमेंट क्यू मतलब क्या हुआ कि कंप्लीट नहीं हो पाया है, तो कंप्लीट नहीं हो पाने का रीजन क्या क्या हो सकता है?
तो दूसरा कारण हो सकता है कि जो बेसिक सिंपल वाला है, लोग एडवांस में नहीं जा रहे हैं, सिंपल ही हमारा क्लियर नहीं है अभी। सो एक रीजन हो सकता है नो इंडेक्स ऑन दैट इक्वल, no index on that objects being used in the query. Okay, Yes, sir. clear everyone? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. No stats gathered on that, on objects on table being used in the SQL. ये तो कॉमन है एकदम, मतलब ये एटलीस्ट तुम लोग दो को बोलना ही है, तुम तो ये छोड़कर बाकी सब बोल रहे हो। आर यू गेटिंग द स्टैट्स के बारे में पता है ना, को भी नहीं पता है? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so no stats gathered on tables being used in SQL. ये पहला मतलब तो दो में ये आना चाहिए। उसके बाद में भी मेमोरी प्रॉब्लम में भी तो ये दो चीज पता कैसे चलेगा सही में? इसी कारण मेरा SQL स्टेटमेंट स्लो चल रहा है। मेकिंग सेंस व्हाट आई एम सेइंग? Yes, sir. ठीक है, तो गेस करने से तो होगा नहीं, कोई प्रूफ चाहिए हमको कि यही प्रॉब्लम है, क्योंकि इस तरह का तो हजारों स्टेटमेंट है। आउट ऑफ दैट थाउजेंड्स वी विल बी गेटिंग टॉप 10 or 5 or 1 or 20 through different ways that we have already discussed. Now, there is a utility in Oracle. We know this as a SQL Tuning Advisor. तो ये है किस चिड़िया का नाम? Through SQL Tuning Advisor, it itself says self-explanatory कि एडवाइस करेगा कि क्या प्रॉब्लम है, और उसका एडवाइस मतलब क्या, अल्टीमेटली वो सोल्यूशन देगा कि ये चीजें तुम करो तो तुम्हारा जो भी प्रॉब्लम है वो फिक्स हो जाएगा। ठीक है, Alright. तो वो करेंगे कैसे? देयर इज अ इनबिल्ट प्रोसीजर, इनबिल्ट सिस्टम है, उसको हमको यूज करना है। देयर आर टू वे वी कैन यूज। वन वे थ्रू OEM, Oracle Enterprise Manager। उसमें क्या है, क्लिक क्लिक करोगे 5 मिनट में काम हो जाएगा। बट उसमें दिक्कत क्या है, व्हेन वी आर इन द लर्निंग फेज, वो क्लिक क्लिक में अंदर में क्या होता है हमको पता नहीं चलता है। सो बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग बिहाइंड द सीन, व्हाट वी आर गोइंग टू डू राइट नाउ। GUI में जो काम होता है मतलब बैकग्राउंड में या बिहाइंड द सीन, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, और वो चीज अभी हम लोग करेंगे। तो एक बार ऐसे पता चल जाएगा तो वो वाला और एकदम मतलब इट्स गोइंग टू बी इजी। कभी कभी हम लोग करते हैं, कैसे हो रहा है, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, पता ही नहीं चलता है। हाँ कर दिए, मेरे को मिल गया, हम लोग खुश है, नहीं होगा वैसे, आगे हम लोग नहीं बढ़ पाएंगे। एंड नो नीड टू मग एनीथिंग, एवरीथिंग इज देयर। फर्स्ट टाइम थोड़ा रिसर्च करके तुमको डॉक्यूमेंट बना लेना पड़ेगा। एवरीबडी यूज्ड टू डू, आई डिड द सेम थिंग। ठीक है, तो एक बार कर लोगे ना, तो कहीं भी कभी किसी सिचुएशन में उसको अचानक से भी अगर स्क्रिप्ट नहीं दिया ना, तो तुम गूगल करके निकाल के बना लोगे। यस अर्णव? Sir, I was asking, can you please show us that utility? No, that's what I'm going to show you. Oh, okay. The whole purpose of this session is to show that only. Okay, sir. Now, which all are the স্যার package? স্যার স্ট্যাট গ্যাদারটা ভালো জানি না। Okay. Stats gather भी हम लोग जानेंगे। Stats gather कुछ नहीं है, पैकेज है। इसमें एडवाइस करेगा कि स्टैट्स गैदर के लिए ही प्रॉब्लम हो रहा है क्या, जो कि कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे, स्टेल के बारे में नहीं पता है, तो मैं अभी वही सारा चीज दिखाने जा रहा हूं। ठीक है, सो मेन हमको प्रॉब्लम क्या है, तो ये स्टैट्स गैदर भी एक प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये इंडेक्स नहीं है, वो भी एक प्रॉब्लम है। अब ये सही में प्रॉब्लम है या क्या है? मतलब बीमारी तो 50 होता है, इस क्वेरी के लिए कौन सा बीमारी है, कैसे बताओगे? दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू सी हाउ टू फिक्स, वेदर इश्यूज आर देयर और नॉट, इफ यस हाउ टू फिक्स इट। क्लियर? तो प्रॉब्लमेटिक एसक्यूएल स्टेटमेंट का हमको आईडी मिल गया है, जो कि हमको काम में लगेगा। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज टू फॉलो द प्रोसेस जो इनबिल्ट हमारा पैकेज दिया हुआ है, जिसको हम लोग यूटिलिटी बोल रहे हैं, जिसको हम उसको डायग्नोस करने का तरीका बोल रहे हैं। वो अब हम गेस किए हैं कि ये प्रॉब्लम मेरा है, तो वेरी फर्स्ट स्टेप जो हम लोग फॉलो करेंगे अभी, ट्यूनिंग एडवाइजर का टास्क क्रिएट करेंगे। ठीक है, कैसे करते हैं? वेरी सिंपल है।
नो नीड टू गो फॉर द मगिंग अप द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या करता है या जो एडवाइजर क्या करता है उसके बारे में हमको पता करना है कि वो करता क्या है उसके बारे में। सो वेरी फर्स्ट स्टेप, लेट्स see here, I'm just putting one by one to avoid confusion. Very first step is to create SQL tuning task, जो कि मैंने बताया। अब टास्क मतलब क्या कि ट्यूनिंग करने के लिए हमको जो चाहिए वो रहना चाहिए। हमको ऑलरेडी पता है कौन सा SQL स्टेटमेंट का हमको ट्यून करना है। फॉर दैट देयर इज अ इनबिल्ट पैकेज है, क्या बोलते हैं इसको, DBMS_SQL tune। इसके अंदर एक फंक्शन है, इसका काम क्या है, जो SQL स्टेटमेंट तुमको प्रॉब्लमेटिक है उसको यहां पे देना पड़ेगा। व्हाट SQL स्टेटमेंट, प्रॉब्लमेटिक SQL स्टेटमेंट वी हैव दिस वन, राइट? तो यहां पे हम देंगे दिस इज फिक्स। इसमें वी कैन नॉट गिव आवर ओन वे, दिस इज द सिंटैक्स, दिस इज द रूल वी हैव टू फॉलो। सिंपल, कॉपी पेस्ट ही करना है, जस्ट तुमको पता होना चाहिए कब करना है। ठीक है सर। क्लियर? कब Yes. करना है, जब प्रॉब्लम है तब। कौन सा स्टेटमेंट का, जिस स्टेटमेंट में प्रॉब्लम है उसका। एंड इसके बाद हम लोग कोई भी यहां नाम दे सकते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं कि ये टास्क ही देना है, नहीं, दिस इज रेलेवेंट नेम। हम यहाँ पे SQL ट्यूनिंग टास्क SHA दे रहे हैं, कोई भी नाम, तुम लोग अपना नाम भी दे सकते हो, ठीक है। फॉलोड बाई, ताकि आईडी रहे ना, कि पता तो चले कि हाँ कौन से आईडी के लिए, किसके लिए हम लोग ये टास्क कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे मैं अंडरस्कोर देकर ये दे रहा हूं। यहाँ पे तुम ABC भी दोगे ना तो चलेगा, बट इट शुड बी सम रेलेवेंट नेम, बिकॉज सेम system में somebody else is also doing tuning for other task or other SQL statement, so it get messed up. Okay, so just like to give a table name, we have to give some name, it makes sense. हम लोग प्रैक्टिस करने के लिए create table name क्या देते हैं, ABC भी दे देते हैं, right? But that is not the standard practice. It should be employee का EMP होना चाहिए, ठीक है? So Right, sir. is it making sense what I'm saying here? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. Exactly. तो ये सिंपल, यहाँ पे हमको समझने में कुछ नहीं है। एक ये वेरिएबल होता है, या कुछ भी दे सकते हो, ये कैरेक्टर डिक्लेरेशन है, ये है। यहाँ पे हमको समझने का यही था कि जो SQL ID हमको देना है ये ही है मेन। अब इसको हम सिंपल कॉपी करके और रन करवाएंगे। कहां पे रन करवाएंगे, कौन से यूजर में करवाएंगे? दीज थिंग्स बीइंग डन मेनली ऑन SysDBA। सिस के अनुसार से ही करते हैं एज अ DBA, जहां पे तुमको परमिशन पूरा फुल होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि तुम HR में घुस के कर रहे हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हो, बट you have to have the highest permission. Right, sir. यहां पे देखो, ये जो मैंने जो नाम दिया स्पेसिफाइड नेम जो भी है, हाँ ये नाम का तरीका ये गलत है। तो स्टैंडर्ड जो है, मैंने बोला ना कुछ रूल हमको फॉलो करना पड़ेगा। तो रूल जो था ये SHA नहीं, ये टास्क, ये जो यहां पे था इसको मैं SHA ट्यूनिंग टास्क, ये SHA मैंने एक्स्ट्रा दिया, वो नहीं दे रहा है ये, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड हमको प्रैक्टिस करना है। अब तुमको यहां कंफ्यूजन होगा, सर यही होगा कैसे, बस रूल यही है। क्यों ये है मेरे को भी नहीं पता, ये ऑरेकल बना के दिया भाई तुमको ऐसे प्रैक्टिस करना है। रेड सिग्नल पे गाड़ी क्यों रोकेंगे ये तुम पूछ नहीं सकते हो, गवर्नमेंट का रूल है करना, नहीं तो सीधे पैसे भरो, नहीं तो दे देता हूं। It's a universal rule, sir. Everybody has to follow. ठीक है, अगर नहीं ये अगर प्रॉब्लम होगा तो वो काम करने नहीं देगा, तुमको गाड़ी चलाने नहीं देगा। मेक सेंस? यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, जो स्टैंडर्ड्स का प्रैक्टिस है वो प्रैक्टिस मैंने फॉलो किया है। Right. नाउ ये टास्क में ये आ गया। अब दूसरा स्टेप क्या करना है, ये 3 स्टेप ये होता है, उसको हमको फॉलो करना। वही मैं भी कॉपी पेस्ट ही कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। तुम लोग कौन सा मैं क्यों कर रहा हूं वो मैं तुमको बता रहा हूं, ठीक है। वो तुम लोगों को भी वो फॉलो करना है, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये जो टास्क यहाँ पे है, यहाँ पे चेक करना है कि क्या उसका, तो ये यहाँ पे हम लोग दे रहे हैं टास्क का क्या स्टेटस है, क्यों करें वो भी मैं बता रहा हूं। अब यहाँ पे देखो कौन सा जो नाम दिया हुआ है वो नाम हमारा नहीं है, सो वी हैव टू गिव द नेम व्हाट वी हैव गिवन हियर। तो कॉपी पेस्ट भी थोड़ा सा समझ के करना है। सर Right, sir. सर हैव अ क्वेश्चन सर। पहले हमने एक टास्क क्रिएट किया है, और उस टास्क को देख रहे हैं अभी हम। ओके वी आर चेकिंग द स्टेटस। नहीं में वो टास्क है क्या, या तो जस्ट वी आर चेकिंग ओके सर। स्टेटस क्या है वो टास्क का। तो ये Alright, टास्क देखो है इनिशियल स्टेट है, मतलब ये टास्क तो बना दिया हमने, लेकिन ये अभी चल रहा है, अंदर में कुछ उसका जो भी एक्टिविटी होना है वो हो रहा है। It is not completed yet. स्टेटस ये दिखाऊंगा, ये कंप्लीट हो जाएगा अपने आप। इट यूज टू टेक सम टाइम वो टास्क को कंप्लीट करने में, ठीक है। ऑलराइट सर। Okay, तो स्टेट होगा, या तो कंप्लीट होगा या तो ये होगा इनिशियल। अभी वो जस्ट हमने बनाया थोड़ा वो टाइम, तो ये अंदर में कर क्या रहा है एक्चुअली, ठीक है।
ये जो सर स्टेटमेंट किया है, yes, इसमें स्टेटस में मींस इफ देयर एनी एरर तो इट विल शो इट एरर देयर। नहीं देखो स्टेटस में अगर क्रिएट हो गया ना तो एरर नहीं है, एरर देना था आगे दे ओके दिया है, देखो यहाँ पे, ओके और उसमें बता दिया मैंने कैसे समझा कि क्या है। यहाँ पे देखो द स्पेसिफाइड नेम, ये क्या बोल रहा है, इनवैलिड है। ठीक है। तो सर हमने चेक किया कि इज इट ओके, मींस यूनिवर्सल लॉ हम फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, वो चेक किया हमने। एंड देन यहाँ हम फिर ये क्या चीज कर रहे हैं, ये चेक कर रहे लेट हैं अस चेक। जो उस हमने टास्क बनाया ना, तुमको मैंने काम दिया, तुम कर रहे हो नहीं कर रहे हो मेरे को कैसे पता, ओके ठीक है, काम तो तुमको दे दिया मैंने। राइट राइट, गॉट इट सर, गॉट इट। So for that we created the task first, then we are checking it. हाँ तो टास्क में सो क्या वी है, कैन ट्रैक इट। हाँ अब ये टास्क क्या है, तो ट्यून करना टास्क है, वो काम है, तुमको बोला कि तुम जाकर ये करो, तो कर रहे हो नहीं कर रहे हो, तुम्हारा कंप्लीट हुआ नहीं हुआ, कैसे मेरे को पता कैसे चलेगा, मैं तो बोल दिया तुम काम करो, मैंने काम बनाकर तुमको दे दिया करने के लिए, मतलब एक असाइन कर दिया तुमको, अब तुम कर रहे नहीं रहे हो, मेरे को कैसे पता चलेगा बताओ, अपने आप तो अंदर खोल के देख नहीं सकते हम लोग। राइट, सो वी Yes. हैव टू क्रिएट अ टास्क एंड देन वी कैन ट्रैक इट फ्रॉम देयर। ट्रैक करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तब तक वेट करना पड़ेगा जो ये काम खत्म नहीं हो, नहीं तो नेक्स्ट, ठीक है, ये काम चल रहा भी इनिशियल ये में है, ठीक है। तो ये स्टेप नंबर जो हमने दो है, इसको भी मैं जस्ट कॉपी करके डाल दे रहा हूं ताकि तुम लोगों को, ठीक है। तो 2 नंबर का जो पॉइंट मेन है, ये चेक द टास्क, ठीक है, ये मैं अभी तो कोई किसी को कंफ्यूजन नहीं है, तो कंफ्यूजन है तो बताओ मेरे को अभी, ये वेरी नहीं सिंपल, सर, ऐसा कुछ रॉकेट साइंस है नहीं, कॉपी पेस्ट ही मैं कर रहा हूँ, तुम लोगों को पता नहीं राइट था, राइट, मैं समझा दे रहा हूँ कि क्यों कर रहा हूं मैं। कॉपी पेस्ट सब कर सकते, उसमें तुमने कब करना कॉपी पेस्ट, बैकग्राउंड क्या है बस वो जानना है सर। वही मेनली क्यों कर रहे हैं, यही इम्पोर्टेंट है। और इसीलिए मैं ये सारी चीजें तुम लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। राइट सर, Yes sir. तो ये उसके इनिशियल शुड बाद, बी, हाँ इनिशियल स्टेटस के नीचे। हाँ, अब ये हम लोगों का जो भी टास्क है इसका हम लोगों ने देखा, उसके बाद क्या कर रहे हैं देखो, अभी तक ये इनिशिएट किए हैं, एक होता है ना सारा सेट, अभी भी गो नहीं किए, मतलब फायर नहीं हुआ अभी भी, ठीक है, अभी तक जस्ट सारा सेटअप है, बटन प्रेस नहीं किए हैं, सेटअप केवल हुआ है अभी इनिशियल फेज में, अभी तक मतलब गो नहीं हुआ है, एक होता है ना सेल्फ देकर गैर मतलब देना बाकी, देंगे अभी रेडी टू गो, काम, हाँ रेडी टू गो टाइप का है, ठीक है। अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। तो ये इनबिल्ट कमांड है सारा, अगेन हमको जस्ट एग्जीक्यूट ट्यूनिंग टास्क, कौन सा टास्क जो हमने बनाया है, ठीक है, तो कौन सा टास्क है वो हमको कॉपी पेस्ट करने में मेन गड़बड़ क्या होता है बोलो तो, ये जो हमने बनाया है इसको ना देके हम पहले वाला ही देते हैं, तो ये यहाँ पे हमको जो मैंने बनाया वो देना है, वो पहले का जहां से कॉपी पेस्ट किया वो देने से तो नेचुरली काम नहीं करेगा, सर एरर देता है, इसीलिए वही देखना पड़ता है। एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये मैं जस्ट अब इसको गो कर रहा हूं, ठीक है। Yes sir. इसके बाद अगर फिर से स्टेटस चेक करोगे ना, फिर से मैं उसका स्टेटस चेक कर रहा हूं, ठीक है, Complete. कंप्लीटेड हो गया। ये कंप्लीट होने का डिपेंड करता है पूरा डेटाबेस के साइज के ऊपर, हम लोग तो सिंपल सा एक टेबल है, उसमें हार्डली 10-20 मतलब मे बी 100 और 1000 और मे बी 5000 रिकॉर्ड होगा, बट इन एक्चुअल टेबल्स मे बी मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स यूज्ड टू बी देयर, सो ऐसा नहीं कि फटाक से नहीं हो जाएगा, मे बी यू हैव टू वेट फॉर 5 मिनट 10 मिनट काइंड ऑफ थिंग, ठीक है, Yes sir. राइट सर, मेक सेंस। अब ये किया क्या बेसिकली, ये जाकर उसका जो भी एनालिसिस करना था वो सारा करके अपना फाइंडिंग, क्योंकि इसका नाम ही हम लोग कर रहे हैं जो ट्यूनिंग एडवाइजर, और ये एडवाइजर लॉग तुमको बताएगा कि भाई क्या फाइंडिंग निकला, दो ही होगा, इधर वो कुछ अपना सजेशन देगा और नहीं तो वो बताएगा कि देयर इज नो एडवाइस ऑन दैट एसक्यूएल स्टेटमेंट, मतलब उसके अनुसार से कोई प्रॉब्लम नहीं है, All right, like you are good to go. यस, बट हाउ टू फाइंड आउट, ये ऑलरेडी स्टेटमेंट इज ऑलरेडी ओके, देयर इज नोट नीड टू चेंज एनीथिंग, कि प्रॉब्लम है या नहीं है वो तुमको बताएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप करने जा रहे हैं, ठीक है, क्या बोल रहा है, चेक द स्टेटस ऑफ एग्जीक्यूटिंग, तो हमने चेक किया कि वो ऑलरेडी कंप्लीटेड हो गया है, राइट, Yes sir. कंप्लीटेड दिखाया था हाँ स्टेटस। सर. अब फेच रिपोर्ट, जो कि मैंने बताया कि क्या रिपोर्ट सही में कुछ फाइंडिंग मिला नहीं मिला,
तो इसके लिए हम लोगों को ये सारा फॉर्मेट करना होता है, क्योंकि उसका जो वैल्यू होता है ना काफी बड़ा होता है। तो वो लोग अगर मैं इस तरह से फॉर्मेट करूंगा तो इट्स वेरी हार्ड फॉर यू टू रीड इट कि क्या लिखा नहीं लिखा। तो पेज साइज सेट करना है, ठीक है, ये जो रो का वैल्यू, लाइन साइज, ये सारी हमको चीजें सेट करनी होती है। मेक सेंस? यस सर। यस सर। ये कितना होगा ये कैसे पता आपको? मैं कॉपी पेस्ट किया हूं, अगर कॉपी पेस्ट में नहीं होगा तो तुम अपने स्क्रीन के अनुसार से इसको एडजस्ट कर सकते हो। उसीलिए हमने लाइन साइज पता है क्या होता है, सेट, ये कॉलम का भी हम लोग ये सारा बेसिक आइडियाज हैं हमारे पास। ऐसा नहीं कि एकदम Yes sir, it depends on screen size and resolution. जैसे मेरा स्क्रीन बड़ा है तो ये मे बी फिट बैठेगा, तुम लोगों को Right. तो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो वो दैट कम्स फ्रॉम Right sir. ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है, ठीक है। अब ठीक है सर। सेलेक्ट ट्यूनिंग जो है, देखो रिपोर्ट, अब रिपोर्ट बन रहा है, मतलब अंदर में आ गया बट हमको दिखना है। जैसे होता है ना, हम कोई भी टेस्ट करवाने जाते हैं, मेडिकल टेस्ट, तो रिपोर्ट बाद में बताओ, वो टेस्ट मतलब मशीन में ऑलरेडी रिजल्ट है, हाउ टू लुक इनटू, ठीक है। तो ये हम अभी देख रहे हैं। सर एक मिनट सर, नेम सर अलग है कोड्स के अंदर। नेम, हाँ, तो वही मैं यहाँ पे, ये अगर नेम होगा तो एरर देगा बेसिकली, ठीक है। Yes, तो sir. उसको हम, Copy paste में इसको ध्यान रखना है। हाँ, तो ये चीज हम, ये जो हमारा टास्क जो बना हुआ है उसका रिपोर्ट हमको चाहिए, ठीक है। मैं ये तुम लोगों को फिर दे दे रहा हूँ ताकि जब तुम लोग अपना प्रैक्टिस करोगे तो गड़बड़ ना हो। ठीक है। यस सर। अब इसमें देखो, यहाँ हमने ये दिया हुआ है, ठीक है। ये क्या दिखा रहा, जनरेट, ये सेक्शन है, कौन से यूजर से क्या है, ये सारा हम लोगों ने यहाँ पे बनाया हुआ है। कितना टाइम लगा इसको, मतलब 1 सेकंड लगा है इसको अपना ये करने में। नेम ये है, इसका आईडी ये है, एसक्यूएल स्टेटमेंट कौन सा वाला है, ये वाला है। हाँ, तो ये एक्चुअली जो मैंने एसक्यूएल स्टेटमेंट दिया है वो गलत है। ये आईडी को तो हम लोगों को ट्यून करना नहीं था। कौन सा आईडी को ट्यूनिंग करना था? सर वो आईडी इक्वल टू समथिंग। हाँ सर। मेकिंग सेंस? तो Yes, हमको ये चीज वहां पे ध्यान देना चाहिए था। मैंने जानबूझकर ये किया। यहाँ तुम लोगों ने हाँ हाँ बोला, यहाँ पे क्या था, एसक्यूएल स्टेटमेंट यहाँ पे एक्चुअल ये वाला होना चाहिए था। ओके, मतलब सेकंड वाला, क्योंकि फर्स्ट वाला तो हम लोग व्यू कर रहे हैं। एग्जैक्टली, वो तो हम जस्ट उसके दिखाने के लिए, अल्टीमेटली हमारा एसक्यूएल स्टेटमेंट कौन सा को ट्यून करना था, ये वाला में प्रॉब्लम था ना। हाँ ये वाला में प्रॉब्लम था। Okay, Anyway, sorry. हाँ, तो यहाँ पे जो मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, अल्टीमेटली व्हाट इज द एडवाइस Oracle has been given. All right, there is no recommendation to improve the statement. All right. Okay. अब हम लोग इसी को थोड़ा सा रिपीट करेंगे ताकि तुम लोग को दोनों को आइडिया लग जाए कि एक में प्रॉब्लम है या नहीं। अभी तक जो था, जो भी, इसमें प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बिकॉज दिस इज डेटा डिक्शनरी व्यू बेसिकली वी हैव यूज्ड। जो होगा वो Oracle खुद फिक्स करेगा, वी कैन नॉट डू एनीथिंग हियर। ऑन द पेज? Yes sir. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू परफॉर्म द सेम टास्क। अब उतना टाइम नहीं लगेगा, फटाक से हो जाएगा 5 मिनट में, ठीक है। केवल हमको यहाँ पे आईडी को चेंज करना है थोड़ा, राइट? सर एक क्वेश्चन है सर, नीचे एक बार चाहिए उधर सर, जैसे कि देयर इज नो रिकमेंडेशन दिखा रहा था रिपोर्ट में सर, इफ देयर बिकम्स एनी इशू देन वो तो आएगा, मैं दिखा रहा हूँ, वही चीज को मैं दिखाने अभी जा रहा हूँ। ओके ओके ओके, ठीक है। तो इसको मैं अभी जो स्टेटमेंट है, तो मैं यहाँ पे सेट टाइम ऑन कर ले रहा हूं। क्यों कर रहा हूं, एक बार फिर से वो सॉरी, सेट टाइमिंग ऑन, टाइमिंग ऑन। और यहाँ पे जो स्टेटमेंट हमने चलाया, मैंने चलाया था पहले, उसका टाइम एक बार चेक कर ले रहे हैं। दो इट्स वेरी स्मॉल टाइमी, इतना लोड नहीं है, इतना टाइम का फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। बट फिर भी यहाँ पे 2 सेकंड लगाया, ठीक है। यस सर। अब मैं
सेम जो इसका आईडी था, और वो आईडी क्या था, एक बार फिर से मैं वहां से कॉपी पेस्ट कर ले रहा हूं, ठीक है, जो कि प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट वाला। दिस इज द आईडी, ठीक है, कॉपी, और मैं सेम चीज रिपीट कर रहा हूं यहाँ पे। यहाँ पे सारा कुछ सेम है, केवल हमको इन सब का सर ये कोड्स के अंदर आईडी चेंज करना है। यस हाँ ये चेंज कर रहे हैं, ठीक है। अब जो प्रॉब्लम है, इसको पहले जितना आईडी मैं चेंज कर ले रहा हूं ताकि इनको रन करवाते इसमें, और ये जो नाम है यहाँ पे भी इसको हमको चेंज कर देगा, ठीक है। यस सर मेक सेंस, सब ठीक है। अब इसके लिए फिर से हम वही रिपीट कर रहे हैं सारा काम, डिक्लेयर जो भी है, हाँ, ट्यूनिंग एडवाइजर का नाम चेंज हुआ है, और मैं जस्ट फटाफट एक एक करके एग्जीक्यूट करवा देता हूँ। So we are creating a task now. हाँ, जो था सेम मैं स्टेप बाय स्टेप ये कर रहा हूँ, एक बार चेक कर ले रहा हूँ क्या है इसका स्टेटस। स्टेज में है, इसको मेरे को रन करवाना है। सर बोलो। सर elapsed के उधर जहाँ पे देखा ना 0.45 सर, वो तो मिली सेकेंड से हुआ ना, क्योंकि Microseconds. बहुत जल्दी हो रहा है। These are microseconds. हम्म आर मिनट सेकंड मिली सेकंड, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है सर, गॉट इट। यहाँ पे मैं फॉर्मेट थोड़ा सा जस्ट चेक कर रहा हूँ। हाँ, यहाँ पे देखो सेम चीजें हैं, ठीक है। अब इसका रिपोर्ट देखो क्या बता रहा है। दिस इज द, मैं एक बार क्लियर स्क्रीन करके फिर से एक बार रिपोर्ट करवा रहा हूँ ताकि यहाँ से मैंने इसको क्या रिकमेंडेशन देखो, जनरल इंफॉर्मेशन सेक्शन है, ट्यूनिंग ये तो हो गया, कितना टाइम लगा ये सारा हम लोग को पता है क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन जो भी हमने काम किया उसका दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कौन सा स्टेटमेंट था, ये वाला स्टेटमेंट हमने चलाया था, इसका आईडी था ये, ठीक है। फाइंडिंग क्या दे रहा, बोल रहा इंडेक्स फाइंडिंग, इंडेक्स रिलेटेड तो कुछ रिकमेंडेशन दे रहा, सी एक्सप्लेन प्लान सेक्शन बिलो, इसमें ये बता रहा रिकमेंडेशन क्या है। The execution plan of this statement can be improved by creating one of the more indexes. परफॉर्मेंस इंपैक्ट होगा 99% इंप्रूव होगा, बेनिफिट। कंसिडर रनिंग द एक्सरसाइज बाय इंप्रूव द फिजिकल, क्या बता रहा है, ये चीज करने के लिए बोल रहा है। क्रिएट इंडेक्स बनाने के लिए बोल रहा है, पूरा मैंने बोला था ना, पूरा सारा रिकमेंडेशन विद सिंटैक्स सारा वो दे देता है, और खुद देता है। मतलब वो स्टेटमेंट भी दे रहा है, मतलब क्रिएट इंडेक्स ये वाला स्टेटमेंट है। हाँ जी, हाँ, हमको सिर्फ इंडेक्स ही क्रिएट करना है बस, देन परफॉर्मेंस विल बी इम्प्रूव्ड। ठीक है। तो कहां पे करना है, किस कॉलम पे करना है, एवरीथिंग विल बी गिवन बाय द ऑर्डर। ऑलराइट, ठीक है। सो क्रिएट इंडेक्स, इंडेक्स का नाम क्या होगा, इसके अंदर ये नाम होगा ऑन कौन सा टेबल पे, ठीक है, और जो भी आईडी और इस पे दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये इस पे हम अभी फोकस कर रहे हैं कि क्या कैसे ये देता है, ठीक है। नाउ उसके बाद क्या बोल रहा, एक्सप्लेन प्लान सेक्शन, रिकमेंडेशन क्या दे रहा, ओरिजिनल ये इसका हैज वैल्यू है, कैसे ये दिखा रहा, देखो फुल स्कैन दिखा रहा, देखो टेबल एक्सेस फुल दिख रहा है। हाँ सर, फुल स्कैन हो रहा है। तो हाँ, यहाँ पे फुल स्कैन हो रहा है,
और नीचे जाओ। अच्छा, प्रेडिकेट इंफॉर्मेशन अवेलेबल है ये। उसके बाद यूजिंग न्यू इंडेक्सेस अगर करोगे तो किस तरह से होगा, प्लान क्या होगा, इंडेक्स स्कैनिंग। इंडेक्स यूज होगा। ठीक है, तो ये इतना देखो कॉस्ट, यहाँ पे देखो क्या था, सीपीयू कॉस्ट मतलब यूज इसका जस्ट, और यहाँ पे देखो क्या होगा। तो ये तुम कॉस्ट में कितना ड्रास्टिकली देखो, बोला ना 99% करीब ये होगा, तो कॉस्ट 3 हो रहा है, यहाँ पे 9 सब ह्यूज डिफरेंस। ह्यूज डिफरेंस। तो 99% बोला है इंप्रूवमेंट होगा। राइट सर। तो इंस्टेड ऑफ फुल टेबल स्कैन यहाँ पे क्या हो रहा है, इंडेक्स स्कैन हो रहा है। मेक सेंस? Sir, यस। it is showing percent, means more than 100% is goes 959%. नहीं, 59 नहीं, वहां पे ऊपर दिखाया था कॉस्ट 9% कॉस्ट में इंप्रूवमेंट होगा, जो उसने ऊपर दिखाया ना, हमने पढ़ा ना, यहाँ पे देखो जो यहाँ पे दिया है कि इसका फायदा क्या होगा। वो एस्टिमेटेड बेनिफिट। हाँ 99.68%. एग्जैक्टली। Okay. So it goes down to 3 only. हाँ, व्हाट एल्स, ये है तो दोनों का डिफरेंस बता दे रहा है कि क्या फायदा होगा। ये प्रोडिक्शन है, मतलब 100% ऐसा ही होगा नहीं, थोड़ा वेरी करता है। दैट्स व्हाट Okay. वहां पे बोल रहा है प्रोडिक्शन। प्रोडिक्शन का मतलब अभी तुम मतलब 100% Right. आइडिया मोटा मोटी तुमको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये है तुम्हारा रिकमेंडेशन। दिस इज व्हाट एसक्यूएल ट्यूनिंग एडवाइजर। अभी तुमको एक रिकमेंडेशन आया है, ऐसा 2 आ सकता है, 4 आ सकता है। मेक सेंस? यस। मैं इसी सिनेरियो पर और थोड़ा डेटा डालकर नया से, मान लो रिकॉर्ड तो इसमें काफी कम था, तो नया एक टेबल बना रहा हूं, सब कुछ नया से, और उसके बाद फिर से ये चीज को, डिफरेंस यही होगा कि वॉल्यूम डेटा जो पहले जितना रिकॉर्ड था उससे मैं ज्यादा डालूंगा। अब यहाँ पे मेन चैलेंज होता है प्रैक्टिस करते समय, सर रिकॉर्ड उतना इंसर्ट कैसे होगा, 2-4 हजार, हमको चाहिए 10 लाख डाल के टेस्ट करेंगे, क्योंकि 2-4 हजार तो ठीक है, बट 10 लाख रिकॉर्ड डालना कैसे डालोगे, क्या प्रॉब्लम, किस तरह से क्या हो सकता है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, अभी सेम जो टेबल था उसको ड्रॉप कर दे रहा हूं। ठीक है, और ड्रॉप करके ड्रॉप टेबल, टेबल नेम, so far any question anybody, let me just check, क्योंकि मेन पार्ट हो गया, फिर से एक रिपीट कर रहे हैं, जस्ट आई एम ट्राइंग टू क्रिएट सम डिफरेंट सिनेरियो सो दैट मे बी डिफरेंट रिकमेंडेशन मे कम। आई एम नॉट श्योर आएगा ही, बट based on my experience I'm trying to just put something so that you can give a different recommendation. Yes sir. So basically we will be like checking the advisory report and there will be the recommendation already about the particular problem, so we need to fix that by क्या करना वो तो मैंने बता दिया, और इंडेक्स बनाओगे और फिर से ये करोगे, देखोगे हाँ, रिजल्ट। अगर कोई और कुछ प्रॉब्लम हुआ, मतलब इंडेक्स रिलेटेड छोड़ के, अगर स्टैट गैदरिंग हुआ या फिर हार्ड पार्सिंग, तब एग्जैक्टली। हाँ, वो बोला ना 4-5-6 तरीके का एडवाइस दे सकता है वो। ऑलराइट, एक ओके, trying to produce a little bit more, maybe 2 or 3 kind of thing. ऑलराइट, ओके सर, ठीक है सर। For that there is a way we can create a table, और उसमें हम लोग ना अपना मनचाहा वैल्यू लाखों में दे सकते हैं बाय राइटिंग अ प्रोग्राम। तो प्रोग्राम भी कुछ नहीं है, सैंपल है, प्रोग्राम समझना ज्यादा जरूरी नहीं है, मेन है सिचुएशन को करना, क्योंकि ये जो सिचुएशन मैं तैयार करने जा रहा हूं वैसा तुमको करना नहीं है, ये प्रैक्टिस के लिए हम लोग कर रहे हैं, बट वो तैयार हुआ तुमको मिलेगा। तुमको जस्ट ये रिपोर्ट मैंने अभी जो लास्ट सेकंड स्टेप किया, कितना मिनट लगा, 5 मिनट भी नहीं लगा। ये अगर कोड तुम्हारे पास रहेगा, इट इज गोइंग टू टेक 5 मिनट ओनली, और मे बी 10 मिनट लगेगा बस। Yes, sir. अभी तक तुम लोग आइडिया ही नहीं था कि क्या होता है ये सारा चीज, तो इज इट समथिंग रॉकेट साइंस? कुछ नहीं है। नॉट No, रियली सर, नॉट रियली। No, sir. इसीलिए अभी वहां पे नहीं पता मुझे, अरे सर ट्यूनिंग से ना बहुत डर लगता है, तो यही है इसको स्टेटमेंट ट्यूनिंग, इससे ज्यादा मेरे को भी नहीं पता है, और इतना काफी है तुमको, It's so मतलब simple. 4-5 साल का बंदा काम करने इतना काफी, इतना कर लोगे तुम्हारा लाइफ, मतलब 90% प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगे ट्यूनिंग का, और क्या चाहिए। सर अभी डर भाग गया। नहीं, भगाने के लिए मैं आया So easy. डर के आगे जीत है। यस। वन मोर टाइम सेम थिंग, हाँ, विद सम डिफरेंट सिनेरियो। तो श्योर सर। मैंने एक स्क्रिप्ट लेकर रखा था, लेट मी फाइंड आउट, वो मैं तुम लोगों को समझा भी दे रहा हूँ कि क्यों कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो तुम लोगों को। तो ये एक स्क्रिप्ट है, क्या कर रहा देखो, हाँ, इसको भी इसी में डाल रहा हूँ ताकि बाद में तुम लोग भी प्रैक्टिस कर लो। स्क्रीन शेयर नहीं है। हाँ,
तो मतलब मैं कुछ छुपा के नहीं कर रहा हूँ, सब कुछ दिखा के करूंगा, ठीक है। नहीं सर, मुझे Right, sir. लगा भूल गए आप। अच्छा, ये देखो, यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे हम लोग और इसमें रिकॉर्ड ये करेंगे। तो पहले कैसे टेबल बनाता हूँ मैं बताता हूँ। सिंपल क्रिएट टेबल, टेबल नेम हम लोग दे रहे हैं ये टेबल, आईडी दे रहा हूँ नंबर, कॉमा, नेम दे रहा हूँ वर्क टू, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है सबको? नहीं सर. नहीं है तो मैं इसको करवा रहा हूँ। जैसे वो टेबल तो मैंने ड्रॉप कर दिया, फिर से वही नाम का टेबल बना दिया। बन गया टेबल क्रिएटेड। नाउ Right. इसके और उसके बाद ये क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, अगर ध्यान से देखोगे तुम लोग ना, यहाँ पे देखो, सिलेक्ट लेबल, मतलब इसमें 1 2 3 ये करके ज्यादा रैंडम नंबर, ये इनबिल्ट फंक्शन होता है। इसके साथ कोई भी एक वैल्यू इंसर्ट करेगा, फ्रॉम वेयर लेगा, कनेक्ट टू लेबल, मतलब अल्टीमेटली जो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, देखो कि सिंटैक्स है, डमी वैल्यू फटाफट हम लोग भर सकते हैं। तो ये हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं इंसर्ट इनटू, इंसर्ट इनटू ism_admin.sh, इसमें आईडी और नेम में देता। आईडी में क्या जा रहा है, ये जा रहा है, और नेम में क्या जा रहा है, ये जा रहा है, ठीक है। ये कुछ भी रैंडम वैल्यू रहेगा। कितना वैल्यू, कितना नंबर ऑफ जाएगा, कितना है यहाँ पे 15 मिलियन है शायद, 1 3 3 6, ठीक है। लिमिट है 15, मतलब 15 lakhs। ठीक है, हाँ सर। का है, हाँ। अब इतना वैल्यू हम लोग उसमें डाल रहे हैं, किसमें, ये टेबल में। सर ब्रैकेट का, सर एक बार। वो मैं ये किया था ना, तो ठीक है, ये वाला देखो यहाँ पे, ठीक हाँ है। सर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अभी देखोगे तो कुछ भी नहीं है। सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम, अगर ism_admin.sh जाओगे यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। और ठीक है सर। इसको चला रहा हूँ, थोड़ा वॉल्यूम ज्यादा है दिया हूँ, मे बी इसमें एरर भी दे सकता है। टेबल स्पेस में मान लो जगह नहीं है तो वो एरर दे देगा तुमको, ठीक है। ये सर। जस्ट अ सेकंड, हाँ यहाँ पे देखो ये चालू हो गया। तो इसमें अगर अभी चेक करोगे, सिलेक्ट काउंट अगर करोगे तो दैट इज गोइंग टू कम दैट वैल्यू, ठीक है। या लाइक द हाउ मेनी रोज आर प्रेजेंट। हाँ, जो हमने दिया वहां पे वो रो यहाँ पे आ जाएगा। सो अगेन दिस सिनेरियो वी आर डूइंग फॉर टेस्टिंग, ये तुमको करना नहीं होगा रियल लाइफ में, ठीक है। ये प्रैक्टिस के लिए इतना वैल्यू, क्योंकि इतना रिकॉर्ड कहां से तुमको मिलेगा, तो तुमको डालना पड़ेगा ना। 15 लाख रिकॉर्ड तुम लोग इंसर्ट करने बैठोगे तो 2 दिन लग जाएगा, ठीक है। ये तो सिस्टम से दे दिया है सर. सॉरी, ये तो सिस्टम से मतलब हमने मतलब फॉर टेस्टिंग पर्पस दे दिया है. हाँ टेस्टिंग के लिए हमने किया। अब बाकी सारा स्टेप वही करना है हमको, ठीक है। अब एक बार काउंट, तो वहां पे हमने क्वेरी चलाई थी ना, एक बार चला के उसका SQL स्टेटमेंट वगैरह सारा वो हम लोग निकाल दे रहे हैं एक बार, ठीक है। तो हाँ सर। यहाँ पे हमने $v SQL वाला रखा सर था। वो सिलेक्ट SQL अंडरस्कोर, हाँ
एग्जैक्टली ये वाला। तो इसके लिए हमको ये स्टेटमेंट एक बार चलाना होगा, वेयर ID इक्वल टू देकर, नहीं तो फिर वो तो मिलेगा नहीं इनको अभी। ठीक है, तो ID इक्वल टू उससे मैं 1 दे रहा हूं मैं। ठीक है, ये अब इसका हमको चाहिए ID इक्वल टू 1 का इसमें देखो ID इक्वल टू 1 है, कौन सा, ये वाला, राइट। यस सर। अब यहाँ पे इसको मैं बस यहाँ पे डाल दे रहा हूं, बाकी क्रिएट हो गया है। अब यहाँ पे हमको देना है ये वाला स्टेटमेंट, सारा पेस्ट कर देना है, इस पे यहाँ पेस्ट कर देना है, नीचे में भी इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, तो यहाँ पे पेस्ट कर देना है, तो यहाँ पे पेस्ट कर देना है, और बस हो गया तुम लोगों का काम। अब इसको एक एक करके रन करवा दो। सक्सेसफुल हो गया है। स्टेटस का चेक करने का जरूरी नहीं है, मेरे को पता है क्या है, ये हम लोग को समझ में आ गया है क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। फिर हम लोग ये स्टेटमेंट एक बार रन करवा दे रहे हैं, क्यों करवा रहे हैं पता है ये सारा। ठीक है, जब तक ये चल रहा है। और उसके बाद रिपोर्ट फेच एडवाइजर, इसके लिए हम लोगों को देखो क्या दे रहा है एडवाइस। ठीक है, ये सारा तो समझ में आ गया क्या है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ID इक्वल टू दी, यहाँ पे देखो फाइंडिंग, 2 फाइंडिंग मिला है, पहले एक था, पहले पिछले वाला में 2 फाइंडिंग में क्या मिला, बोल रहा कि स्टैटिस्टिक फाइंडिंग। मतलब क्या है कि वो अभी हम लोगों ने रिकॉर्ड डाला ना, तो उसको तो बाय डिफॉल्ट 24 घंटे में मिडनाइट में ऑरेकल अपने आप स्टैट्स गैदर करता है हर ऑब्जेक्ट का। ठीक है, स्टैट्स जो भी कितना कॉलम है, कितना रिकॉर्ड है, कितने का वॉल्यूम है, क्या हुआ सारा। लेकिन ये तो अभी हमने थोड़ी देर पहले किया, 5 मिनट पहले, तो उसको तो बाय डिफॉल्ट मिडनाइट में उसको चाहिए, तो होता है अपने आप वो रन कर जाएगा। अगर कल करूंगा तो ये वाला रिकमेंडेशन नहीं आएगा। अब क्या बता रहा है देखो, टेबल ये इज नॉट एनालाइज्ड, एनालाइज करके क्या होता है, हमको स्टैट्स गैदर होता है, बट कैसे करते हैं स्टैट्स गैदर ये भी दे दिया गया है। TPMS ये करके सैंपल करके इसको कॉपी पेस्ट कर दो, परफॉर्मेंस ड्रास्टिकली इंप्रूव हो। मेकिंग सेंस? कैसे स्टैट्स गैदर करते हैं, ये है सिंटैक्स। ओके सर ये तो लाइक और भी इजी हो गया, लाइक वी डोंट हैव टू फाइंड। हाँ, बस ये रिपोर्ट में रहेगा, उसको ही बस मैं करना पड़ेगा, चला दोगे जस्ट कॉपी एंड पेस्ट। ओके सॉरी इजी हो गया। हाँ, और दूसरा वाला तो पहले ही था कि इसको तुमको इंडेक्स एक बनाना पड़ेगा, राइट? हाँ राइट सर, क्रिएट इंडेक्स। हाँ, उसके लिए भी यहाँ पे दिया हुआ है कि कैसे सारा सिंटैक्स कॉपी पेस्ट करना है, ऑल राइट, करके और फिर कर दोगे, काम खत्म तुम्हारा।